Welcome back class 10th students. So students, as we have started chapter 6, that is triangle. Actually this chapter 6 is based on similar triangle. So in the previous video we discussed about similar triangle. So what is similar triangle? Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal, and second is if their corresponding sides are in proportion. So on the behalf of these 2 points you may say that two triangles are congruent. So we have just simplified exercise 6.1. So on the same pattern, now today we will start exercise 6.2. So this exercise 6.2 is based on basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem, in short, it is known as BPT, or you may say it Thales theorem, because Thales just postulated or invented this theorem. So that's why this theorem, basic proportionality theorem, is known as Thales theorem. So now we will start this theorem. So this theorem can be asked in the board examination to prove, as well as Pythagoras theorem can be asked in the examination to prove. So only two theorems of this chapter can be asked in the board examination to prove. Rest of the theorems just for your motivation. It means this theorem will not come to prove, but their result may be used. मैंने ये कहा है कि दो थ्योरम ही आपके सिलेबस में प्रूव करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकती हैं। जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दूसरी है पाइथागोरस थ्योरम, जो मैं आगे आपको कराऊंगा। और बाकी जो थ्योरम्स आपको दी गई हैं, टोटल मिला के इसके अंदर आपके पास जो थ्योरम आ गई हैं 9 थ्योरम्स हैं। तो 9 में से 2 थ्योरम्स आपके सीबीएसई बोर्ड पूछ सकता है आपके बोर्ड पेपर्स में, और जो बाकी थ्योरम्स हैं वो आपके मोटिवेशन के लिए है। इसका मतलब उसका सिर्फ आपको रिजल्ट यूज करना है। सो स्टार्टिंग दिस फर्स्ट थ्योरम, दैट इज नॉन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। So it is basic proportionality theorem. In short, it can be written as BPT, or you may write it Thales theorem. So what is the statement of this basic proportionality theorem? Just I am writing here on the board. So you will write, if a line is drawn parallel to one side of a triangle. So just I am writing it statement on the board. So just I have written here, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the
डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग पॉइंट में उसको कट करवाना है। So students, I have written this statement. What is the statement? कह रहे हैं if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. इसका क्या मतलब है ये हम इसके प्रूफ में आपको बताएंगे, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है उसके ऊपर। सो जस्ट फर्स्ट यू विल राइट, पहले मैं लिख देता हूं गिवन क्या है और फिगर बना लेता हूं। So students, here ABC is a triangle. So if a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो DE हमने पैरेलल कर ली है ड्रॉ BC। So just what is given, जो गिवन है उसमें आपको क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC D is parallel to BC. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज गिवन। तो ये इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए एज इट इज रिटन, ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ए बी और ए सी हो गई, इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। उसने कहा है कि दोनों जो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। The other two sides are divided in the same ratio. It means you have to prove AD upon DB is equal to AE upon EC. So students, ये आपको प्रूव करना है। तो अब इसमें बिना कंस्ट्रक्शन के ये प्रूव नहीं हो पाएगा। इसमें हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। सो यू विल राइट इन द कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ DP perpendicular to AC. AC भी लिख सकते हैं या AE भी आप इसको लिख सकते हैं। एंड इसी तरह से E से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने EL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इस पर AB पर। सो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से ये दो परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, ये कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें हम प्रूफ पे आते हैं। So in the proof, just we will write
ट्राइंगल ADE, ये आप ट्राइंगल ले रहे हैं ADE। So just for you will write in triangle ADE, ये आपने ट्राइंगल लिया है ADE। तो क्या आप इसका एरिया बता सकते हैं कि ADE का एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपके पास एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का। दूसरी बात, इसमें कंस्ट्रक्शन में हम ये भी ज्वाइन कर सकते हैं कि हम BE को आप DC से ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज योर चॉइस। क्वेश्चन ये आता है कि हमने BE और DC को क्यों ज्वाइन करा, क्योंकि इससे भी ट्राइंगल बन जाएगा DEBED। So just you will write here join BE and DC। DC भी लिख सकते हैं या CD भी लिख सकते हैं, एक ही बात। तो इन ट्राइंगल ADE हमने ADE ट्राइंगल लिया है और दूसरा BDE ले रहे हैं एंड ट्राइंगल। अब कहेंगे आप ADE और BDE क्यों लिया है? क्योंकि ADE और BDE में AD और BD साइड आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिया। तो जस्ट यू विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD। क्वेश्चन ये आता है कि इसको अपॉन में क्यों लिखा है? तो इसलिए अपॉन में लिखा है क्योंकि ये साइड भी प्रोपोर्शन में है, AD अपॉन BD आ रहा है, इसलिए इसको भी आपने डिवाइड कर लिया है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो जस्ट एरिया क्या होता है? हाफ। AD का बेस क्या हो गया है? AD का बेस हो गया है AD और इसका परपेंडिकुलर EL हो गया अपॉन इन द सेम वे BD में अगर आप देखिए BD इसमें बेस क्या हो गया है? BD का BD और इसका परपेंडिकुलर भी EL हो गया, क्योंकि ये आपके पास इधर से 90 है तो ये इधर से भी 90। तो एज यू में से हाफ कैंसिल हो गया है और EL से EL कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा AD अपॉन BD। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप दूसरा ट्राइंगल लेंगे, जैसे यहाँ AD और BD लिया था, इसी तरह से इन ट्राइंगल ADE ये सेम आप ट्राइंगल ले रहे हैं एंड ट्राइंगल DEC। इस बार हमने DEC ट्राइंगल लिया। तो ADE में अब आप देखें बेस आप अगर हम AE को माने तो इसका परपेंडिकुलर DP हो जाएगा। सो जस्ट यू विल राइट हाफ इंटू AE इंटू DP। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू EC बेस हो गया है और इसका परपेंडिकुलर भी DP हो गया है। तो यहां पर भी हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और DP से DP कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज AE अपॉन EC। ओके स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि दो ट्राइंगल अगर सेम पैरेलल्स के बीच में है और उनका सेम बेस है तो उनका एरिया इक्वल होता है।
तो यू में राइट, ये जो ट्राइंगल BD है, यू विल राइट बट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इनका एरिया क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, दोनों पैरेलल लाइन है ना, ओके, इसलिए बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर मेड बिटवीन सेम parallels and on the same base। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक सेम पैरेलल्स के बीच में है और सेम बेस पर है, दोनों का बेस D है। अगर आप ट्राइंगल BDE देखें और CED देखें, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। तो देख रहे हैं ये ADE, तो ADE के इक्वल हुआ, और नीचे वाला BDC किसके इक्वल आपने प्रूव कर दिया है, DEC के। स्टेटमेंट आपने लिख दिया है टू ट्राइंगल्स आर मेड बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, इसलिए दोनों एरिया इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड you may write AD upon BD is equal to AE upon, so this is, so on the behalf of these two, first and second, you may write AD upon BD is equal to AE upon EC. So it was the proof of basic proportionality theorem. Okay students.